ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, शुरुआत यहीं से करते हैं। ये ड्राइविंग फोर्स क्या है इसके पीछे, जो मेंटरशिप के लिए जो ये आग है अंदर, व्हाट इज द फ्यूल बिहाइंड? मेरा देश, मेरा देश, माय कंट्री। सी, बहुत 400 साल हो गए थे हमें ये ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए यहाँ से, मगर जब वो गए उसके बाद देयर इज सम काइंड ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन इंडियंस, डेफिनेटली। एंड इट्स नॉट बिकॉज वी हैव बीन प्रूवन टू बी इंफीरियर, हम प्रूवन नहीं है। इनफैक्ट जब भी कोई चीज आती है जहां पे हमें प्रूव करना पड़ता है, वी आर ऑलवेज इन द टॉप एंड वी सरप्राइज एवरीबॉडी। अच्छा, इंडिया में टॉप में आ गया। राइट। It's been because of this thing of 400 years of living under somebody's rule. और वो कितना सा देश है, पंजाब से छोटा है, ठीक है। जितनी भी prosperity, people don't understand, जितनी भी prosperity उस देश में आई थी is because of looting our country. Yeah. And now that money is finished there. अब उनकी बुरी हालत देखना क्या होगी। और our prosperity can be, see, richness can be taken away from somebody who's hardworking, but it'll come back because we deserve it. So I think that Indians are racist towards Indians, not towards Goras. गोरों की तो हम अभी भी पूजा करते हैं. So color of skin still matters to us. And unless we start believing in ourselves that we are the world's best, we will never be the world's best. The first step of being the world's best is believing that you're the world's best. And self-belief is something which I don't know why we Indians lack in, even though we shouldn't. Because everywhere we've proven that we are the world's best. What is the need to prove? मतलब अभी हम पूरा घूम के आए हैं कि वर्ल्ड में हमने प्रूव करने, we are the best and we need to prove. No, we don't need to prove. We don't need to prove to the world. We need to prove to ourselves by. See, our only competition is us. Like a single person, my only competition is me. I think India's competition is us. We have to be better than what we were yesterday. Yes. We have to stop thinking about US कहाँ पे, Europe कहाँ पे. ना. हम कल से कितना आगे गए हैं. और अगर हम सिर्फ अपने आप को improve करें without looking at, so our competition is with ourselves. And we have to learn to improve ourselves every day. If we do that, we will be world champions. See, that's what I tell my, जब ये leadership, mentorship की बात आती है, तो मैं इनको कहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में competition तुम खुद हो. और वो कहते हैं नहीं सर, हमने तो वर्ल्ड चैंपियन बनना है, क्या छोटी बातें करते हो, क्या खुद से कंपटीशन. मैंने कहा अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तब भी तुम्हारी कंपटीशन खुद है. कैसे? सर, आई वांट टू बी द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. राइट. यूसेन बोल्ट. सो अभी भी 9.58, इवन दो रिटायर्ड, नोबडी इज बीन एबल टू बीट. सो टुडे यू विल फर्स्ट टाइम योरसेल्फ. मेरी टाइमिंग है चलो 13 सेकंड, वेरी गुड. सो कल को मैं क्या बीट करूंगा? 13 को 9.58, 13 को. So I'll make it 12.99, 12.98, 12.97. If I'm better than yesterday every day, one day I'll beat Usain Bolt. That's how you become world champions. Also, like India is blessed with saints and Sufis. तो उनकी भी जर्नी मोस्टली क्या है, उनकी इनसाइड जर्नी रही है. तो अपने साथ में ज़्यादा है और बाहर को कम है. बाहर को काट के अंदर को, एंड आई थिंक इट इज़ थोड़ा सिमिलर ट्रैक पे ही है. इनफैक्ट जहाँ पे सेंट्स एंड सूफीज की बात हो रही है, पहले इंडिया के खुद लोग मजाक उड़ाते थे. बिल्कुल. मजाक, थिंग्स फ्रॉम इवन थिंग्स लाइक आयुर्वेदा. Whereas 99% of all cures for cancer have come from medicinal plants. Right. Apparently there is a cure for every disease there is in the world in medicinal plants, and because we've been saying that 5,000 years, nobody listened. Ab yoga, the whole world has taken over now, but yoga has been there in India for so long, nobody cared. But because it's an Indian ancient ritual, that's why. So I think what saints and Sufis can bring to the table is much more than the world realizes, because they are the ones who can actually, ये जो आजकल आ रही है ना बातें, mindfulness and social living and being in one with the planet, ये 5,000 साल से हम ये बातें कर रहे हैं. बिल्कुल. एंड रंजीत सर, इसकी कल्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुली एक इकलौते राइटर हैं. मतलब आप कोई भी सूफी राइटर पढ़ो, इनफैक्ट कोई भी राइटर पढ़ो, नोबडी राइट्स डेफिनेटिवली कि ये है. एक कार्ल मार्क्स ने ट्राई किया था सिमिलर टाइम पे, बाबा बुल्ले शाह. हाँ, बाबा बुल्ले शाह ने एक लाइन है, बुल्ले शाह गल ताइयों मुक्दी, जो भी जिनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है. ताइयों का मतलब तभी नहीं, तब ही. बुल्ले शाह गल ताइयों मुक्दी जे मैनू दिलो मुकाइए. डेफिनेटिव आपको मुद्दा आपके सामने पड़ा है. इसको आप प्याज की तरह छीलते रहोगे, आप कोरोना भी आता रहेगा, लेकिन आप छीलते रहोगे. इतनी परतें, इतनी कोर है, क्या मजा आता है उसके अंदर.
एक बात जो मेरे को ना अभी जब मैं थोड़ा सा यहाँ आने से पहले कुछ पढ़ रहा था, एक कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरे को नाम नहीं याद उसका, उसमें एक लाइन थी कि इंडियन फुटबॉल इट इज डेकेड्स बिहाइंड द वेस्टर्न वर्ल्ड. ट्रू सर, बात पिंच हुई मेरे को. थोड़ा इसके ऊपर आप लाइट डालो, क्या इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, और क्या ये सही है? नॉट ओनली डेकेड्स बिहाइंड बट इट विल रिमेन डेकेड्स बिहाइंड टिल द टाइम दे डोंट फोकस ऑन द राइट स्टफ. दे हैव टू फोकस ऑन द राइट स्टफ. So, see, why I said it will remain behind, because unless we start focusing on the right things. इंडिया में वो सोचते हैं कि हम IPL को बना देंगे इमीडिएटली ISL जैसा. IPL इसीलिए बना है क्योंकि हमारे देश के क्रिकेटर्स, फॉर एग्जांपल, जो हमारे देश के सेकंड या थर्ड रैंक क्रिकेटर्स हैं, वो बाहर जाके टॉप डॉलर कमाते हैं. जो वहाँ के सेकंड और थर्ड रैंक फॉरेनर्स हैं, यहाँ पे आके टॉप डॉलर कमाते हैं फुटबॉल में. क्यों? क्योंकि प्लेयर्स इतने ज्यादा है इंडिया में, सो वी कैन इवन एक्सपोर्ट द वंस वी डोंट नो. राइट. एंड उनके पास इतने प्लेयर्स है फुटबॉल में, दे कैन कीप एक्सपोर्टिंग. राइट. नाउ हाउ डज दैट हैपन? ग्रासरूट्स. ग्रासरूट्स मतलब इट इज नॉट स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 13, 14, 15. इट इज स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 6, 7, 8, 9. जैसे बाहर गली में जैसे ही आप जाओ और आप देखते हो कि क्रिकेट खेल रहा है हर बंदा, वैसे ही जब फुटबॉल इज गोइंग टू स्टार्ट, देन वी विल गेट इट. वो कल्चर क्रिएट करना है. अब ये कल्चर है इन गोवा, इन केरला, इन बंगाल, इन नॉर्थ ईस्ट. वी हैव दिस कल्चर, बट वहाँ पे देयर इज नो डेवलपमेंट, देयर इज नो एक्चुअल स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है. नाउ इफ यू वांट टू कम्पीट विद देम, सी, ये कहते हैं 4-5 चीजें कहते हैं जो मुझे चुभती हैं. इंडियंस के पास जीन्स नहीं है फुटबॉल खेलने. कौन से जीन्स यार? पावर एंड स्टेमिना. ये जो नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा ने मेडल लिया, ये पैसों वाले मेडल हैं. ये अभी आए हैं. उससे पहले जितने भी हमारे मेडल आए थे ना लाइफ में, या बॉक्सिंग में आते थे, या रेसलिंग में, या वेट लिफ्टिंग में. सो विच पावर एंड स्टेमिना टॉकिंग. फिर कहते पैसे नहीं है. ब्राजील के पास पैसे हैं? नहीं. ओके, खत्म होगी बात. फिर कहते काफी पॉपुलेशन हमारी नहीं खेलती है. आइसलैंड की पॉपुलेशन है 3 लाख. वो पहुंच गए वर्ल्ड कप. 3 लाख हमारे दिवाली के मेले पे होते हैं. बिल्कुल. 3 लाख ऑन एनी गिवन डे इंडिया में लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं. सो एग्जैक्टली, जस्ट इमेजिन. फिर वो कहते हैं कि हम टीम गेम्स में अच्छा नहीं करते. ओके, फॉरगेट अबाउट क्रिकेट. क्रिकेट इज नॉट अ वर्ल्ड प्लेड स्पोर्ट. सो हॉकी में हम किन नेशंस को थ्रैश करते हैं? नाउ समहाउ जस्ट सी, जो नेशंस फुटबॉल में अच्छा करते हैं ना, हॉकी में अच्छा करते हैं, एक्सेप्ट इंडिया. सो इफ यू गो टू यूरोप, यू सी स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस. There is no other. And if you go to Asia, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Iran, and then if you go to South America, Argentina, Uruguay. But somehow we can thrash them in hockey, but we can't do it in football. See, this happened with hockey also. Hockey में we were the world's best, 9 gold medals, top class. Right. फिर ऐसे नीचे गए, और फिर लगा तो कोई चांस ही नहीं हमारा, मगर हम पहुंच गए. कैसे पहुंचे हम? Because we realized कि हम हॉकी खेलते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे, लोग खेलते हैं टर्फ्स पे. तो जब तक यहाँ पे हमारे बच्चे टर्फ्स पे ना खेलें, जस्ट हैविंग 4 टर्फ्स इन द होल कंट्री इज नॉट गोइंग टू हेल्प. के जब नेशनल टीम खेलेगी टर्फ पे खेलने. अब फुटबॉल में यही हो रहा है. नेशनल टीम टॉप या 100 प्लेयर जो है क्लब्स में, उनको टॉप क्लास फैसिलिटी मिलती है. जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो फैसिलिटीज हैं, देयर आर नो फैसिलिटीज. इंडिया में अब 800 टर्फ्स हैं. 800. उड़ीसा में 150 टर्फ्स हैं हॉकी के लिए. सो अगर करेगा प्रोड्यूस हो, फिर ऑब्वियसली अगर आपके पास ग्राउंड है तो बच्चा क्या खेलेगा? वेयर ही सीज अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वेटिंग फॉर हिम टू प्ले. नाउ इज इट डिफिकल्ट? नो, इट्स नॉट एट ऑल, बिकॉज आवर ईच स्टेट इज लाइक अ कंट्री. हमारे एक स्टेट ने धानी कि हमने इंडिया को वापस हॉकी में पहुंचाना है. उड़ीसा ने पहुंचा दिया. एक स्टेट का काम है. मैं ओपनली कहता हूँ ये, एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन के ना बीजेपी ना कांग्रेस, ये और ये तो वो ना बीजेपी कांग्रेस, कोई और मिस्टर पटनायक, कोई और अपने वहीं पे जो पार्टी है उनकी. एंड ही हैज टेकन इट ऑन हिमसेल्फ. एंड इमेजिन देयर बजट ऑफ स्पोर्ट्स इज मोर देन व्हाट साई और द इंडियन कंट्री स्पेंड्स ऑन हॉकी. जस्ट वन स्टेट. सो लुक व्हाट वन स्टेट कैन डू. सो अगर हमारा हर एक स्टेट एक गेम भी अडॉप्ट कर ले ऐसे, या instead of doing that and says, okay, this is my game and I'll take it forward and this is the pride of our state, imagine where we can reach.
वो एक शेर है ना कि इसके आगे का काम तितलियों के सुपुर्द, आपको तो बाग बनाने का मन बनाना है। एग्जैक्टली अब देखो किसी ने नहीं किया तो फिर मैं भी बोल बोल के मैं थक गया कि इंडिया को पहुंचाने का तरीका है 6, 7, 8, 9 से शुरू करो, रेजिडेंशियल एकेडमी रखो, फॉलो व्हाट द वर्ल्ड डज, रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मेसी, अब सबको पता है मेसी के बारे में। अब जो मेसी है, मेसी 40 साल पे उसको पहली बार अगर फुटबॉल दो, वो मेसी होता? वो 5 साल से सुबह शाम फुटबॉल खेल रहा है, दूसरे वाला मेसी होता फिर वो। हाँ, सो इमेजिन इस सिंपल लॉजिक। नाउ हमने क्या किया, हमने एज मिनर्वा हमने 100 लड़के सेलेक्ट किए फ्रॉम द एजेस। सो मैंने कहा फॉरगेट अबाउट सीनियर एंड ऑल दैट स्टफ, आई सोल्ड माय सीनियर क्लब ऑफ। मैं कहा मेरे 4 में क्लब्स रखूंगा अपने at the second division level so that my boys have a chance to platform to play. जो पैसा आएगा मैं इन्वेस्ट करूंगा into this, and जितना पैसा मेरे पास पर्सनल है सारा मैं इन्वेस्ट करूंगा इंडिया को वर्ल्ड कप पहुंचाने के लिए 2034 में। So that's the dream. And for that we selected 100 boys ages of 7 to 10 from all over India. And all over India से कैसे select किए? We could only select from 5 states. Why? Because baby leagues, baby football, मतलब football for kids under 10 was happening only in 5 states. Again constraint क्या? मेरा आप बोलते हो 1.4 बिलियन, कहाँ 1.4 बिलियन? सही में 5 स्टेट्स, कौन से 5 स्टेट्स? मणिपुर पॉपुलेशन कितनी है? फिर उसके बाद मिजोरम कितनी पॉपुलेशन है? उसके बाद असम कितनी पॉपुलेशन है? और बंगाल कितनी पॉपुलेशन है? गोवा कितनी पॉपुलेशन है? सो लुक एट द काइंड ऑफ स्टेट्स आर पॉपुलेटेड. टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल दीस स्टेट्स वुड बी 10 करोड़. टैप ही नहीं हुआ. सो बट अगर आप पहले हम ना हर बंदा क्या बोलता था, क्या तेंदुलकर कहाँ से आएगा अगला यार, फिर हमारे पास धोनी आ गया, फिर अगला धोनी कहाँ से आएगा यार, फिर विराट कोहली आ गया. अब कोई पूछता ही नहीं अगला विराट कोहली कहाँ से आएगा. क्यों नहीं पूछता? बिकॉज हमारा ग्रासरूट्स क्रिकेट का इतना तकड़ा बन गया है. बिल्कुल. ओके, यू गो टू अ नॉर्मल ग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट का ग्राउंड, सुपर सॉपर होता है मशीन जो 2 करोड़ की होती है जस्ट टू ड्रेन अप द वाटर. एवरी डिस्ट्रिक्ट्स बीन गिवन दैट. सो दिस पैसा जो ऊपर है वो सारा नीचे पर्कुलेट कर रहा है. 55,000 करोड़ अगर आईपीएल में आए हैं, वो कोई घर नहीं लेके जा रहा, वो वापस क्रिकेट में लग रहा है. ठीक है. सो उसमें जितनी मर्जी करप्शन भी कर ले, तभी 50,000 करोड़, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ पहुंच ही जाएगा. अब फुटबॉल में क्या डिफरेंस है? इन्होंने इतनी बड़ी हेराफेरी ये क्या की है कि जो टॉप लीग ऑफ द कंट्री है ये पॉलिटिशियंस ने बेच दिया है अंबानी को. सो आईएसएल ओन्स द टॉप लीग. अब इसमें क्या है, हाउ डू आई गेट इन देयर? यू कैन ओनली गेट इन टू द टॉप लीग इफ आई पे मिस्टर अंबानी 18 करोड़ a year. Not if I'm good enough. I can be the worst team in the country. बट अगर मैं 18 करोड़ साल के दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम. अच्छा, अब इससे प्रॉब्लम क्या है? जब ये लीग बड़ी होएगी, किस दिन बड़ी होएगी? फुटबॉल इंडिया में बड़ी होएगी 10 साल 20 साल बाद. जब ये 50,000 करोड़ आएंगे, ये कहाँ जाएंगे? मिस्टर अंबानी के पास, because he owns the league. They have no thing of actually putting the money back into football because they don't. AIFF doesn't own the league. AIFF is All India Football Federation. So they have to understand. And national team कहाँ से select होती है? इस private league में से. Is there any promotion relegation? No, which I've been fighting for, which is the base of every league in the world. Can we say मतलब ये तो खरीदने वाली बात होगी ना कि तो खरीद लिया ना इसने, फिर अपने दोस्तों को दे दिया. जैसे for example all the clubs have been given to somebody he knows or rich other corporate people. अब corporates में क्या होता है? वहाँ पैशन नहीं होता, वहाँ पे बॉटम लाइन होती है. राइट. अब उनको क्या हो रहा है, 10 साल से जब से इन्होंने शुरू किया है, 8 साल हो गए हैं, हर साल इनको 40-50 करोड़ का लॉस हो रहा है हर एक टीम को. अब 10 में से 5 टीमें बंद हो चुकी हैं, 5 नहीं आ गई हैं. अब क्या होएगा? कितने साल बंदा लॉस ले जाएगा? वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए थे, वो इसलिए नहीं आए थे कि दे वांट टू प्रमोट फुटबॉल. नाउ द क्लब्स व्हिच हैव बीन देयर फॉर 100 साल, they are there for promoting football because they are there knowing कि यहाँ पे तो पैसा आएगा नहीं गेम में. Those are clubs which will never walk away from the game because उनके लॉस हो रहे हैं. So the wrong kind of now इसीलिए now how am I so sure? Because हमारा छोटा सा क्लब है मिनर्वा एकेडमी चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंजाब में, which is compared to ISL clubs we are very small. Now each ISL club का बजट है 2 crores just for the junior teams. And how many national titles in juniors have they won? 0. And that means 20 crores a year they spend on junior football and they won 0 titles. And I have 8. And I have spent 1/10 the money.
So what are they doing with the money? So this same money can be spent on actual junior football. Because इतनी बुरी हालत है हमारे में कि grassroots में तो there is no football at all. And ये बार बार बोलते रहते हैं हम वर्ल्ड कप पहुंचेंगे. See, वर्ल्ड कप पहुंचने के लिए पहले आपको एशिया में टॉप 4 में आना पड़ेगा. अब चलो 48 टीम्स है, टॉप 8 में आना पड़ेगा. आपकी रैंकिंग अभी 13th या 14th है, तो आपने 6 स्पॉट्स ऊपर जाना है. आपने किससे कम्पीट करना है ये देखो, और वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो उनकी अंडर 16 और अंडर 15, उनको पता है कि अंडर 16 टीम है, यही 8 साल के बाद हमारी सीनियर टीम होगी. सिंपल है. तो पैसे उन पे खर्च करने, नॉट ऑन द सीनियर्स. एक ना फ्लाइट सी लेते हैं और इस पूरे टॉपिक को अम्ब्रेला टर्म से देखते हैं. बिल्कुल एक स्पिरिचुअल एंगल पे जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें आएंगे. मैं चाह रहा था कि आपसे मैं इस गेम की इकोनॉमी को समझूं कि इसमें आया ही कैसे ये सब कुछ. बट उससे पहले ना एक छोटा सा एक चीज क्लियर करते हैं. व्हाई डू वी प्ले स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट एट ऑल एज ह्यूमंस? वो क्या है? आई रियली बिलीव दैट स्पोर्ट्स इज द एसेंस ऑफ लाइफ. How? Because you don't need to be rich or poor to play sports and have the same kind of enjoyment जो एक बिलियनियर को मिलती है वो एक भूखे नंगे को मिलेगी अगर वो स्पोर्ट्स खेलेगा. सेम. बट वो जो भूखा नंगा है ना, स्पोर्ट में बिलियनियर को बांट देगा. Because in sports you are equal to every man who's playing against you. Yeah. Your money, your caste, your color, your skin, your gender doesn't matter. Okay. It is the greatest equalizer in the world. When you're playing sports, you're equal to everybody who's there. That is, and then sports is something which teaches you how to lose, which people don't realize now. इतनी बड़ी वैल्यू है. अब इतना कह रहे हैं मेंटल प्रेशर, मेंटल एगनी, और they don't know how to lose. Yeah. And this thing of knowing how to win is something you learn so much more how to lose. Wow. And then the qualities: cooperation, leadership, discipline, teamwork, honesty, loyalty, integrity. All this decision making, time management, never giving up, all this comes from sports. And not being good in sports, just playing sports. Automatically qualities आएंगी. There is a big match. आपने बहुत प्रिपेयर किया है, probably आपने पूरी लाइफ प्रिपेयर किया है, हार गए, है ना. एक शेर है कि बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया. तो अगेन 4 साल ओलंपिक्स में यही होता है ना. जो हमारे एथलीट्स हैं, एक को गोल्ड मिलता है, और जो बाकी मेहनत करते रहते हैं उनके लिए बिल्कुल यही शेर है ना. बट दैट्स द पावर ऑफ स्पोर्ट्स. मैं सोच तो रहा था कि मैं इसको ना आपको किसी तरह घुमा के लेके जाऊंगा यहाँ पे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम किसी भी स्पोर्ट से, जो आज के टाइम में लाइक इंडिया इज टर्निंग इनटू द डिप्रेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और जो पूरा वर्ल्ड जिन तरीकों से इलाज कर रहा है वो इंडिया के तरीके हैं. इंडिया के पास नेचर है, एवरी काइंड ऑफ लैंडस्केप है. बिल्कुल. जो आपको इंस्पिरेशन चाहिए, बाहर जाओ सांस लो आ जाती है. बिल्कुल. Still it is turning into the depression capital of the world. Because here again people are not taught, they're not, see, unless parents push kids into sports, they push them into depression. Yeah. Why? Study, stress, study. अब study plus साथ में अगर तुम sports भी खिलाओ, he'll handle how to lose, he'll handle not being able to win, or he'll be handle all those things which studying will not teach you. लाइफ क्वालिटीज जो आती है ना, लाइफ, इनको हम कहते हैं ऑफिसर, जैसे मेरा आर्म फोर्सेस का भी है, इनको हम कहते हैं OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. दिस इज व्हाट इज चेक्ड इन द SSB. ऑल दीज क्वालिटीज आर इनहेरिटेड थ्रू स्पोर्ट्स, नॉट थ्रू स्टडीज. स्टडीज डजंट गिव यू क्वालिटीज. गॉट इट. एंड क्वालिटीज स्टे फॉर लाइफ टाइम. स्टडीज स्टे फॉर जब तक तुम्हारी मेमोरी है. नाउ द क्वालिटीज वो आप ही हो ना बेसिकली. इट इज यू ओनली. या. सो unless you are challenging yourself, see, you have to get out of your comfort zone. Sports is something which teaches you how to get out of your comfort zone, and either you will succeed or you will not. If you don't, you'll learn much more. If you do, then obviously you'll become better. But सर मीराबाई ने लिखा है वो कि मैं लाइन भूल रहा हूँ वो कि पर लाइन लास्ट में कुछ ऐसे आती है कि प्रेम प्याला जब से पिया है जी का है ये हाल, अंगारों पे नींद आ जाए कांटों पे आराम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम. तो सही है ना. तो सिचुएशन आपकी मैटर नहीं, सिचुएशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल. ट्रू.
And see, that's what I'm saying, hardships in life. Yeah. The kind of hardships it teaches you. For example, now जितने भी लड़के यहाँ पे रहते हैं, they are staying in a hostel and they've got people from 20 states staying with them. क्या बात है. चलो अब तुम्हारा फुटबॉल में लाइफ में नहीं बना, तुम जिस मर्जी नौकरी में जाओगे इंडिया में, people will not be there from your state. You'll have to learn to get along with people from all over India. Yeah. You've already done that here. Then you are learning how to cooperate, you're learning how to have teamwork, management, all these things. So for example, हम सबने संडे को क्रिकेट मैच खेला, सैटरडे रात को हम क्या कर रहे होते थे, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कि कौन किसको सवेरे उठाएगा, कौन जाके पिच मलेगा, कौन जाके बॉल लेगा सैटरडे रात को ही, क्योंकि संडे सवेरे को दुकान खुलती नहीं है. ये सारी चीजें सोचनी पड़ती थी. सो दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स टीचेस यू. क्या बात है. For example, you're preparing for a match and the team is better. You know the team is better than you. But sports is something where you know if you fight harder that day, you might win. Which nobody else can ever give it to you. That means somebody is richer than you, he will go and dominate you in other spheres of life. Yeah. In every other sphere of life. Except in sports. यहाँ पे the one who wants it more, the one who's trained harder, the one who deserves it more, he will get it. Not the one who's richer. Your body doesn't know कि आपके पास wealth कितनी है. Exactly. Amazing. सर बहुत सही लगा ये वाला. तो एक बार ना उस पे चलते हैं जो काफी टाइम से मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा है. बहुत ब्रीफ में ना, व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, कि हाउ, जैसे आप बोल रहे थे कि प्लेयर्स आ रहे हैं, उस पे पैसा लग रहा है. सी, अभी इकोनॉमी इज नॉट दैट गुड. व्हेयरएज इफ यू से कैन यू मेक मनी फ्रॉम फुटबॉल, I really don't think you can. If you want to get into football to make money, you will not. Okay. Maybe if you get into football to give results, then one day you will make money. So मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ तुम सारे मेरे FD हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो, और 10 साल के बाद देखेंगे जो मैच्योर होएगा ना, उसमें से अच्छा पैसा मिलेगा. So that's what I'm looking at. No problem. They are all my FDs for my country. So for 10 years, my country will reap the results. Now, if other people start looking at it like this, see, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे हमारी जैसी 100 मिनरवा चाहिए. मेरी नहीं, मतलब 100 हमारी जैसी जगहें, right, where grassroots is the focus. Because हमारे को अब कहते हैं फैक्ट्री. फैक्ट्री इसीलिए because the number of players we produce. अब ISL में जो इनकी इंडियन सुपर लीग है, I have 42 players. मतलब 4 टीमें मेरी हैं उसमें. तो अगर हम मेरिट से जा रहे होते, we would be playing there. Right. But I am okay in even doing this as long as I'm producing players for my country. So I have 8 players in the senior team, Indian national senior team now. So which is a huge thing for just one place. But all those boys are not from Chandigarh. They are from all over the place who've come and trained, scouted by us and then trained. So economy इसमें ऐसा है कि जब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, because I don't have to buy players. So I will not be losing money. Whereas every other club, because they have to go and buy players, they will not produce. Till the time they don't produce their own players, they lose money. Then the second way economy is, suppose you see, मैंने खेलना, मैं टॉप लीग में खेलना है, तो अगर मेरे को प्रमोशन रेलिगेशन है, मतलब अगर if I'm good enough, I believe I'm good enough, I can start from the 4th division, win it, go to the 3rd, win it, go to 2nd, go and win it, go to 1st. That means you can multiply the value of your club into 10 or into even 50 from minute 1. That is only possible if there's promotion. So promotion, apparently they've said from this year there will be one team which is going to be promoted. This was one of my biggest battles. So once that happens, then suppose a guy who's there playing the 4th division, the club doesn't cost more than 10 lakhs. Then you go into the 3rd division, 1 crore, 10 crores or 20 crores, and from I-League you go on to ISL, which is minimum 200 crores. So if that happens, then it becomes a good economy. That is why promotion is required. If you just stop it there, that you can only play here, अपने में खेल लो, top league में जहाँ पैसा you can't go. So English Premier League is there because of the championship, and the championship is there because of their 2nd division and 3rd division. Right. Pyramid has to be there. And the pyramid is like this, so it has to get bigger and bigger. Yeah. Whereas हमारे इंडिया में ऐसा है, टॉप में हमारे 13 टीमें हैं, फिर आई लीग में 11 टीमें हैं, 2nd डिवीजन में 10 टीमें हैं, उसके बाद 3rd डिवीजन आई नहीं. इन्वर्टेड पिरामिड, लाइक इसमें तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. Exactly. So you need to have a bigger pool of players, so the best can keep going up, and then you have this. यहाँ पे नहीं इतने. वही एक और सवाल मेरा यही होने वाला था कि हाउ डज द पॉपुलैरिटी ऑफ अ स्पोर्ट
helps us affects the sport? See, a lot. Now, popularity is that it's not that football is not very popular. Football probably, if you look at the new generation, is more popular than cricket. But they don't watch Indian football, na? Yeah. Difference. Now, why? Because we Indians like to be the best in the world. अगर हम 83 में वर्ल्ड कप ना जीते होते, Indian cricket wouldn't have been what it is right. Yeah, right. So Indian team needs to do well. When Indian team needs to do, because India doesn't want to support somebody. I've never seen somebody who's come 7th or 8th in the Olympics be a star in India. India में star कौन बनता है जो मेडल लेके आता है? Yeah, top 3. तो अगर जब हम मेडल लेके आएंगे अपने आप होएगा काम. अच्छा, मेडल कैसे लेके आएंगे? जब ग्रासरूट्स में इन्वेस्ट करें. Okay. It's a very vicious cycle. Yeah. Till that happens, we have no chance of popularizing the sport. अब देखो वहाँ पे बंगाल में गया, मैं कोलकाता में था, and every gully I went to had posters of Argentina or Brazil and flags of Argentina or Brazil and actual murtis of those players. That's the kind of craziness which is there to be tapped. मतलब कि right. मेसी की जगह उनको आप इंडियन प्लेयर दे दो who's achieving that, this country will go crazy. Like ये humanity की हिस्ट्री में होता रहा, introduce a new god. Yes. So how far is it? Mohamed Salah, Egypt. One guy. Then same guy is Min Sung-hoon जो ये Tottenham का star है for South Korea. The entire country supports just one club, Tottenham, because of that guy. So we need one guy, that first guy to come out and show Indians that is possible. And we are good enough. In that matter जो अभी हम उसकी बात कर रहे थे कि एक vicious cycle है. So I am seeing Minerva as a wedge in it कि इसके अंदर मतलब एक cleavage आई है now. So that's what I'm saying. It's a little wedge. Imagine if everybody was doing what I was doing. Yeah. It's a guaranteed success. Yeah. Now I've taken it on myself. Yes, we'll get there. But if everybody did it, we'll get there 4 years earlier. But tabhi, no matter even if everybody did it, you still can't get there before 2030-34. Why? Because जो बच्चे अब इतने हैं, they will reach. Otherwise, when you say na they will reach in 28, that means you're saying they should have already been in the top 4 in Asia. How far are we from this? No chance. Right. So 2034 की बात कर रहे हैं तो 2032 में जो एशियन कप हो रहा है उसमें we need to be in the top 8 in the quarterfinals. How do we get there? How do we get there by focusing on who in 2032? The ones who are right now 14, 13, 12. Not on the ones who are 26, 27, 28. There's no point. They'll not be there after 5 years. मतलब इतना से जब मैं यहाँ पे एंटर किया ना सर, तो आई कुड स्मेल द पैशन. और ये ऐसा नहीं है कि एंटर करने से पहले, राइट फ्रॉम द गेट, द पर्सन हु इज एट द गेट है ना, वहीं से मेरे को ना एक वो शब्द होता है जुनून. अभी तो आप विंटर्स में आए हो, इसीलिए सारे कुकर बन के अंदर बैठे हुए हैं. अदरवाइज यू हैव नॉट सीन इन लाइक यहाँ पे ना आके रूह खुश हो जाती है. है सर. बिकॉज यहाँ पे आप जब पीछे की तरफ जाओगे, जब सेशन चल रहे होते हैं तो फुटबॉल में तो फुटबॉल चल ही रहा होता है. 4 फील्ड्स फॉर फुटबॉल, बट बास्केटबॉल भी चल रहा है, साथ में वॉलीबॉल भी चल रहा है, साथ में टीटी भी खेल रहे हैं, साथ में बैडमिंटन भी खेल रहे हैं. So there's 6-7 sports going on at the same time and everyone is out there and that is their form of entertainment. And अब when it's becoming so cold, if you go out anyway, you see kids always on their phones. That is what we want to avoid here. कि ये काम करना, stop being couch warriors and be real warriors on the field. क्या बात है. वरना एक कवाली है कि आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा, मेरा सागर ना छूना कभी, साकिया हाथ जल जाएगा. तो उस वो वाली आग आती महसूस हुई है. और ये जब तक आग इनमें ना जलाएं, and this all comes with belief. See, I believe that जितने भी हमारे रिजल्ट आए हैं, more than anything else, yes, hard work, but belief. Because इनको शुरू से हम belief देते हैं कि तुम चैंपियंस हो. इनको पहला क्वेश्चन पूछते हैं who are we? इनका आंसर आता है चैंपियंस. So अगर तुम्हारा मेंटल एटीट्यूड ऐसा है कि हम चैंपियंस हैं, then losing is not an option for you. It's not an option at all. So for us, a draw is, forget about a loss. A draw is the worst result for us ever. And that is why we win. Sir, how is draw the worst result? कैसे? Because that means you are equal to the other team. Okay, so there is no scope. अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि there's nothing known as being equal to. You have to be better. अरे वाह.
क्या बात है. हाँ. There is no second choice. See, यहाँ कहते हैं सिल्वर मेडल. सिल्वर मेडल in the armed forces is death. There is no second place in war. And nobody remembers after 20 years who came second. So you have to be always in that mindset of being champions. That we have to be champions. And trust me, it doesn't matter if you're good enough or not. If you don't have that belief, even if you are good enough, you'll never make it. सर पहले वाली बात कनेक्ट हुई है यहाँ पे, जो मैं तो पूछ रहा था ना कि why do we play sports at all, and the survival instinct. Yes, survival instinct. तो basically अगर if you don't have hope, survival is hope. हम सबसे बड़ी चीज हम humans के लिए क्या है? Hope. अगर हमारी hope मार दो हम मर जाएंगे. हम सारे होप में हैं. क्या बात है, सारे होप में हैं. क्या बात है सर. इस तरह मुझे याद आया, ये सामने ना यहाँ पे ये जो सारे समझ में आया मुझे, ये 10th नंबर पे लिखा हुआ है, ये कैमरे के लिए पढ़ देता हूँ कि स्टेइंग एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड. यहाँ पे ना अभी राइट नाउ क्या है कि 10 इन्होंने एथिक्स लिखे हुए हैं. बीइंग ऑन टाइम, वर्क एथिक्स, गिविंग एफर्ट, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल. एक है इसमें स्टेइंग एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड. सर कैसे मतलब? सी, एक प्रिपरेशन होती है कि मैं फुटबॉल टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि कल मेरा मैच है, तो यार मैंने ना प्रॉपरली रेस्ट लेना है आज. ये प्रिपरेशन है. स्टेइंग एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड इज मैंने प्रॉपरली रेस्ट लेना है, फिर मैंने अपनी डाइट का ध्यान रखना है विच इज गोइंग टू रिकवर मी द मोस्ट. अगर कल मेरा मैच है तो मैंने कार्ब लोडिंग करनी है. रात को मैंने किस टाइम पे सोना है, मैंने इतनी हाइड्रेशन करनी है कि मेरा सुसु का कलर वाइट होना चाहिए उसको, क्योंकि दैट मीन्स मेरी कल मैच में मसल पुल नहीं होएगी. अगर मेरा हाइड्रेशन नहीं है इसका, एंड दैट डजंट मैटर हाउ मच वाटर आई हैव टुमारो, द हाइड्रेशन मैटर्स टुडे कि आज मेरे सुसु का कलर क्या है. सो इतनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इवन व्हाट यू आर ईटिंग, ब्रीदिंग, स्लीपिंग, दैट इज बीइंग एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड, नॉट जस्ट दैट मैच. सी, अभिनव बिंद्रा ने अपने एक सेंटर के बाहर लगाया हुआ है और मैंने अपनी फोटो खींची उसके साथ जाके. ओलंपिक्स इज नॉट एवरी 4 years, इट्स एवरी डे. क्या बात है, क्या बात है, वाह. वो तो तुम उस दिन जाके कर रहे हो, अदरवाइज इट डिपेंड्स नॉट ऑन दैट डे, इट डिपेंड्स ऑन तुमने 4 साल में हर रोज क्या किया. वो शेर है, कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते. तो आपको तो रोज ही ये लगना चाहिए कि आज ही मुलाकात है. टुडे. क्या बात है, क्या. बिकॉज आई हैव टू बी बेटर देन व्हाट आई वाज यस्टरडे, ओनली देन आई एम इंप्रूविंग. वाह. रंजीत सर, एक बार ना क्योंकि जो हमें अभी सुन रहे हैं प्रॉबेबली उन्हें ये इकोसिस्टम पता नहीं है और पूरी तरह मुझे भी नहीं पता है. बहुत ब्रीफ में हम शुरू करते हैं कि हाउ दिस होल इकोसिस्टम वर्क्स, कि ये क्लब्स होती क्या चीज है ना, कुछ अनहर्ड. सो सी, मैं अपना बताता हूँ. जब हमारा ड्रीम शुरू हुआ, हम सिर्फ 6-a-side फुटबॉल क्लब थे. 6-a-side मतलब कि मैं और 5 मेरे दोस्त जो फुटबॉल खेलते थे. जब भी कोई छोटा सिटी में 6-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं जैसे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे, वो हमारा क्लब था. तो हमने क्लब का नाम रखा था शार्क्स. सो हमारे 6 थे. मिनर्वा शार्क्स वाज द नेम ऑफ आवर फर्स्ट क्लब. एंड खेलते खेलते वी बिकेम गुड, एंड उससे वी बिकेम एस्टैब्लिश्ड ऑन द सर्किट मतलब चंडीगढ़ का सर्किट. उससे फिर जब हमारी रेपुटेशन बढ़ी, फिर हमारे को क्लब, हमने 11-a-side का क्लब फॉर्म किया. फिर हम 11-a-side के टूर्नामेंट्स एंटर करने शुरू किए. फिर हम स्टेट चैंपियनशिप में गए. तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट जीतना पड़ता है बाकी स्टेट्स में. अगर डिस्ट्रिक्ट जीतोगे तो फिर आप स्टेट में खेलोगे. ये पिरामिड सिस्टम है. स्टेट जीतोगे तो आप सेकंड डिवीजन आई लीग जाओगे. सेकंड डिवीजन जीतोगे या रनर अप आओगे तो आप आई लीग जाओगे. आई लीग जीतोगे so you should have gone to ISL, whereas which was not happening. वही मेरी बात थी, पिरामिड सिस्टम. तो ये नॉर्मली स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास रूट्स, मतलब कि कोई डिस्ट्रिक्ट में भी अगर क्लब खोलना चाहे वो खोल सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स. यहाँ पे ये बताओ ना मुझे कि ये रजिस्टर होता कहाँ पे है, कि ये क्लब so ये अपने स्टेट एसोसिएशन, जो आपका स्टेट एसोसिएशन है, हर एक स्टेट एसोसिएशन के आगे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस होते हैं, कंपलसरी हैं. तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पास जाना है और उनको बोलना है मैंने एक क्लब रजिस्टर कराना है. नाउ क्लब रजिस्टर कराने के लिए अलग अलग डिपेंडिंग ऑन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बट दे आर सपोज टू रजिस्टर योर क्लब इमीडिएटली विदाउट एनी फस. एंड आपको 3 साल के बाद वोटिंग मेंबरशिप, वोटिंग राइट भी मिलेगा टू, इफ यू, मतलब कि अगर आप खेलते रहो क्लब में एंड इट्स एक्चुअल क्लब, देन यू एक्चुअली गेट अ वोटिंग राइट टू इवन चूज
कि डिस्ट्रिक्ट आपका कौन चलाए फुटबॉल में। ओके, इट इज सिमिलर टू जैसे जो रोटरी जिस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है इंडिया में। यस, दैट इज फॉर रोटरी में, या इट्स काइंड ऑफ सिमिलर बट हियर इज स्पोर्ट्स, हियर इज उसके एक नज़म थी, वो सुनाओ आपको थोड़ी सी। जरूर। ओके, कि उनको अपनी बातों में उलझा लिया है, कभी कभी तो लगता है उन्हें पा लिया है, ऐसे कैसे जाने दे किससे बेवफाई के, मैंने फिर से वो मसला उठा लिया है। और मसला जो मैं उठाने वाला हूँ वो ये है कि सर रोटरी मतलब मैंने रोटरी के साथ बहुत काम किया, लगभग 8 साल मैंने उनके साथ काम किया है, और अपनी खुद की रोटरी भी हमने ओपन कर ली थी। देयर वाज अ रीज़न कि हमने उससे पुल आउट कर लिया क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत डिस्टर्ब कर रही थी वहाँ पे, एंड हम लोगों के पास पैशन और आइडियाज़ बहुत ज़्यादा थे, एंड वहाँ से वो रिस्ट्रिक्ट बहुत हो रहा था। तो हमने अपनी खुद की एनजीओ खोली है और उसके बाद हम वहाँ काम कर रहे हैं, एंड इट इज़ फ्लरिशिंग। बिकॉज भाई यही जो चीज़ फुटबॉल में है और वही लेके जा रहा था हर स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है। इनफैक्ट पॉलिटिक्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में, बिकॉज समहाउ पॉलिटिशियन, एक मिनट रुको, ये स्टेटमेंट आप एक बार दोबारा बोलो। ये पॉलिटिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में है, और एक गारंटी है, क्योंकि पॉलिटिक्स के द्वारा जो नॉर्मल बंदा है जिसको कोई जानता भी नहीं है, अगर वो नॉर्मल तरीके से ऊपर जाए पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता। बिल्कुल, वो अगर अपना स्पोर्ट्स में लगाए सब उसको जानना शुरू कर देते हैं। बट उसका रीजन स्पोर्ट्स में आने के लिए क्या है, नॉट कि मैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा दूं, अपना पर्सनल रीजन है कि मैं पॉलिटिक्स में आगे जाऊं। सो जितने भी हमारे पॉलिटिशियन आज तक इंचार्ज रहे हैं स्पोर्ट्स के, उस स्पोर्ट्स के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं है। अगर उसको जो प्रेसिडेंट है आपके एसोसिएशन का, अगर उसको दर्द नहीं पता उस प्लेयर की, and he has not been through the same दर्द, how will he help those players? सर इस पे तो कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज अ क्लियर कट डिस्कनेक्ट, टोटल क्लियर कट डिस्कनेक्ट। आपको मतलब अब देखो कितना अनफेयर था अभी तक। आईएएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन में लॉयर होता है? नहीं। लॉयर्स के एसोसिएशन में डॉक्टर होता है? नहीं। डॉक्टर के एसोसिएशन में सीए होते हैं? नहीं। फुटबॉलर के एसोसिएशन में फुटबॉलर नहीं होते, क्रिकेटर एसोसिएशन में क्रिकेटर नहीं होते। ये कहाँ से ठीक बात है? तो यही चीज के लिए हम लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मैंने कोई केस किया था इसके लिए। वन ऑफ द बेसिस ऑफ द केसेस वाज दैट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स शुड नॉट बी अलाउड unless and until they have been in the sports at the highest level themselves, then it's no bar. उसकी वजह से आज फाइनली हमारे हॉकी में is a president Dilip Tirki who was a international hockey player. फुटबॉल में इस कल्याण चौबे who was an international footballer. क्रिकेट में नाउ इज रॉजर बेनी, उससे पहले गांगुली। सो ये अब आना शुरू हुआ है। उससे पहले हम कभी सोचते ही नहीं थे कि कोई अच्छा स्पोर्ट्स वाला भी स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेड हो सकता है। बट सबसे ज्यादा आगे तभी बढ़ेंगे हम when sports people are into sports management and see they can, the actual management part they can probably hire professionals, but decision making has to be in the hand of a sportsman. अच्छा, आप कहते हो कि अच्छा वो क्यों नहीं करप्ट होंगे, बाकी सारे करप्ट हैं, उनका क्या मतलब है कि स्पोर्ट्स वाले क्यों नहीं करप्ट होंगे? आप कह रहे हो स्पोर्ट्स वाले। सर देखो सवाल आया नहीं था मेरे दिमाग में। हाँ, बट ये इनका मेन चीज है। व्हाई नॉट चलते हैं, कि कहते हैं कि ये क्यों नहीं होंगे, तुम बोल रहे हो इनको हटा दो, करप्ट है, इनको क्यों नहीं? क्योंकि अगर मेरे को ना 25 साल लगे हैं अपना नाम कमाने के लिए, कि आज मुझे वो प्रेसिडेंट बना रहे हैं मेरे एसोसिएशन का। 25 साल नाम किससे कमाया मैंने? इंडिया की सेवा करके। इंडिया को अपना नाम रोशन मेरा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं इंडिया का सेवा कर रहा था स्पोर्ट्स में। मैं 25 साल का नाम 5 सेकंड में गवा सकता हूँ अगर मैंने कुछ गलत किया। कौन मेरी रिस्पेक्ट करेगा? अगर मैंने जिस स्पोर्ट्स ने मुझे इतना कुछ दिया है वो मेरे से अब ले, कौन रिस्पेक्ट करेगा? दैट मीन्स मैं करप्शन करूं और सारे जहां मैं जाऊंगा सारे फुटबॉलर मुझे कहेंगे। सर ये तो आइडियल केस है ना, ये तो बहुत कन्वीनियंट आंसर दिया आपने। ये आइडियल केस है, मतलब कि आइडियल केस है डिपेंडिंग ऑन, सो सी द चांसेस ऑफ, ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं आया हूं स्पोर्ट्स में टू गेट, आई एम अ पॉलिटिशियन बट आई हैव नथिंग टू डू विद द स्पोर्ट्स, व्हाई हैव आई कम टू द स्पोर्ट्स? देयर इज नो अदर रीजन। ठीक है, राइट। आइडियल और नॉट आइडियल है ही नहीं कोई रीजन। ये तो आया ही साला करप्शन के लिए या पर्सनल गेन के लिए या अपने कोई काम करने के लिए। ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन आया ना तो उसमें स्टिल अ चांस। तो हम होप की बात कर रहे थे ना, यहाँ कनेक्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, ये होप है भाई। अगर ऐसे तो फिर आप बोलो कि जो गवर्नमेंट रहती है डेमोक्रेसी में वही रहने दो, वो अगली भी आएगी वो भी करप्ट होगी जी, अगली आएगी वो भी, फिर तो ऐसे आप इलेक्शन ही ना करो।
अच्छा इलेक्शन के इसीलिए तो इलेक्शन हो रही है. अच्छा इलेक्शन कौन करना चाहिए? स्पोर्ट्स पीपल विल डू. आपको लगता है कि अगर 10 स्पोर्ट, आई विल टेल यू नाउ डिफरेंस. अगर मेरी इलेक्शन हो रही है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो बाकी स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं वो भी पॉलिटिशियन है सारे. बात ही खत्म हो गई फिर तो. कौन लेके आएगा? अब जो बाकी स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं साले स्पोर्ट्स वाले हैं और ये भी स्पोर्ट्स वाला है. वो कभी इसको वापस लेके आएंगे ये जब गलत करेगा? नहीं. Whereas the politicians will all bring the same guy back because they don't care about the sports. अरे हमारे पास मतलब इस टाइप के एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट करप्ट नहीं होता, ही इज पोस्टेड बैक टू बैक. खेमका सर का एग्जांपल है हमारे पास. देखो उस बंदे के साथ कितना बुरा हुआ है. I mean, I have utmost respect for him. I've had personal dealing with him. He used to be something to do with sports here in Haryana. Yeah. और ताऊ देवीलाल में फुटबॉल होती नहीं थी. तो हमने बोला जाके हम यहाँ पे आई लीग लेके आएंगे. एंड ही वाज द फर्स्ट वन एंड आई डिडंट नो हिम. आई जस्ट सेंट हिम एन एप्लीकेशन सेइंग दैट सर ये ऐसी बात है, हरियाणा में कभी फुटबॉल नहीं हुई है टॉप क्लास, मैं अपनी टीम की फुटबॉल यहाँ पे लेके आऊँगा, सारा हम खर्चा उठाएंगे, आपको कोई खर्चा नहीं उठाना, सारी टिकटें फ्री होंगी, आप बच्चों को बुलाओ और दिखाओ. और उन्होंने बोला वाह करो, और हमने किया. और आजकल आई लीग के मैच वहाँ पे ताऊ देवीलाल में हर हफ्ते होते हैं. और उन्होंने अब वहाँ पे फ्लड लाइट्स लगा दी हैं. वहाँ पे आके 5-5 हजार बंदा मैच देखता है क्योंकि वहाँ पे कल्चर शुरू हो गया. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन विजन. और उसके साथ क्या होता है, जैसी वो गलत चीज किसी के बारे में बताता है, ही इज शंटेड आउट. एंड दैट इज द fallacy of our country. All the whistleblowers, instead of bahar, whistleblowers get utmost respect. Here, whistleblowers are looked down upon. कि साले तेरे को क्या प्रॉब्लम है, वो खा रहा है, तेरे को क्यों प्रॉब्लम, तूने नहीं खाना ना, तू चुप करके बैठ. राइट. तू उसका काम क्यों खराब. बैक टू बैक केसेस है इंडिया के पास. और वैसे भी ना सर, अभी जब मैं जिस पॉइंट पे आपको लेके आना चाह रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, जैसे कि एसोसिएशन है, उसको चलाना, उसमें अदर देन स्पोर्ट्समैनशिप और जो स्पोर्ट्स की क्वालिटीज हैं, सर्टेन अदर थिंग्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो हाउ डू वी इंश्योर कि जो ये स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, दे कैन बी अ बेटर मैनेजर एज वेल. तो वहां पे एक डिस्कनेक्ट सा आपको लगता है कि है? बिल्कुल है. बिकॉज हमारे अनफॉर्चुनेटली पुराने जो स्पोर्ट्समैन थे, सारों की बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली मैं, मोस्टली आर फ्रॉम अनएजुकेटेड बैकग्राउंड्स. ओके. बिकॉज पहले तो इंडिया कंट्री बड़ी अनएजुकेटेड थी. सो जो स्पोर्ट्समैन, मतलब टॉकिंग अबाउट पुराने जनरेशन, सो उस टाइम पे स्पोर्ट्स यूज्ड टू बी अ वे आउट कि गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी. तो स्पोर्ट्स हॉस्टल्स में जितने भी लड़के बाहर आए हैं, वो एजुकेशन तो थी नहीं उनकी, जीरो. तो गलती से वो स्पोर्ट्स की उस बंदे की इंजरी हो जाती है. he never used to have a second career. He used to be living in poverty for the rest of his life. Nowadays it's a very different thing. All kids are educated. Like मेरे academy में सारे बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी है. जैसे बाहर अब होता था ना पहले कि ओनली इफ यू आर एबल टू डू अ बेसिक इन योर स्पोर्ट्स यू विल बी अलाउड टू इवन प्ले स्पोर्ट्स. आई मीन इन योर स्टडीज यू विल बी अलाउड टू प्ले स्पोर्ट्स. ठीक है. यहाँ पे वो बात ही नहीं थी बिकॉज हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं थे. हम कहते थे कि यार ये खेलना है तो छोड़ो पढ़ाई पढ़ोई, इसके ऐसे लगा दो पास. राइट. और हमारे अभी भी स्कूल्स में ऐसे ही होता है कि जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनकी अटेंडेंसेज सारी मार्क लगती हैं, विच इज वेरी रॉन्ग टू डू. सी इफ यू वांट टू डू स्पोर्ट्स यू हैव, लाइक फॉर एग्जांपल अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ अभी ये इंडिया में, बॉयज की बात कर रहा हूँ मैं, अराउंड 3-4 years ago. सेम प्लेयर्स जो अब जाके वहां पे खेल रहे हैं, जैसे फिल फोर्डन है और जो टिम विया है जो यूएस के लिए आया था, वो उस टाइम उस वर्ल्ड कप में खेल रहे थे. वो अंडर 17 के लड़के और वर्ल्ड कप जीते. इंग्लैंड वन दैट अंडर 17 वर्ल्ड कप. वो अपनी पढ़ाई की बुक्स लेके आए हुए थे वर्ल्ड कप में. क्या बात है. और 2 ट्यूटर्स साथ में ट्रैवल किए थे उनके. So they used to have classes in the middle of the World Cup for 2 hours in the World Cup, because at that age education is as important. Why? Because India में problem क्या है? India में problem ये है कि जो हमारे sports वाले हैं ना, उनकी decision making sucks very bad. Why? Because they're not educated. So your presence of mind and decision making comes from working your brain. How can you have plans and strategies and tactics if you're dumb? And that is where we fall. And what does an uneducated person do? He does not know what recovery is. He does not know कि मैं परांठे खाऊंगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम पड़ेगी. He does not know मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स या कार्ब लोडिंग या प्रोटीन्स क्यों खाने चाहिए, अमीनो एसिड्स क्यों खाने चाहिए, आइस बात क्यों लेनी चाहिए, नहीं पता उसे. And unless he knows it from a very young age, he will not. You can't. सर ये भी एजुकेशन का बहुत नैरो व्यू लग रहा है मेरे को कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर
वी सी वर्ल्ड फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल कि पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर चीज़ क्यों है, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, we see a very very limited kind of view. वही मेरे कॉन्वर्सेशन में भी ऐसे ही लग रहा था कि जब जो मेरा सवाल है एक्चुअल में वो ये है कि जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए अलग स्किल्स हैं जिसको हम बोलेंगे पीपल स्किल्स, या फिर हम कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे इस पूरी चीज़ को, व्हाट विल बी द इकोनॉमी, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट. That has to be by professionals. You can't leave that to the sports people. सो अभी जो हम बात कर रहे थे कि So that is जो प्रेसिडेंट है या जो जनरल सेक्रेटरी है या जो आपका हेड है, he is there for making your policies. For example, Narendra Modi is not an expert in anything. Right. But he's got a heart and brain कि मैंने कंट्री के लिए ठीक करना है. ठीक है? For example. Right. For example, you have somebody who's the president or this who knows कि मैंने अपनी गेम के लिए ठीक करना है, गेम के लिए अगेंस्ट कुछ नहीं करना. That is all we need. That is what मेरे को छोटा सा डाउट तो था कि ऐसे सवाल के ऊपर ये कोई ऐसा जवाब देंगे जिसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा. एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कुछ ऐसे ही किया है यहाँ पे ना. हाँ, बात सही है. कैन वी से लाइक दिस कि द स्पोर्ट्स पर्सन इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ही और शी कैन बी द स्टीयरिंग. इंजन अभी भी हमारा इंजन हैज टू बी प्रोफेशनल. या वो कन्वेंशनल not see again politicians and bureaucrats are not professional. They are not the ones who are supposed to get in. Who's supposed to get in? The sports people are supposed to just be steering it and or giving the direction. The actual day-to-day management has to be by world-class top professionals. Yeah. Now, where do you get them? Do you know how many sports management institutes now there are in India? There are over 100 which have happened only in the last 5 years. In all over the place, every college is opening its own sports management institute. Where will these graduates go? Right. So technically, ecosystem has to be. See, जब वो कहते हैं develop football, तो लोग सोचते हैं फुटबॉलर्स को डेवलप करना है. ना. फुटबॉल को डेवलप करना है. It has to be entire ecosystem. Ecosystem का मतलब क्या है? Physiotherapist, sports and SNC experts, sports and conditioning experts, nutrition, sports psychologist, analysts, tacticians, आजकल तो फ्री किक एक्सपर्ट हो गया, थ्रो इन एक्सपर्ट हो गया, different things. Specialization. Yes. So today is the world for specialists, not for somebody who can just do everything. Sir, even the definition of evolution is going from simple to complex, and when things become complex, तो उसमें specialization आएगी. So minor gains is what world sports is on now. So you have to have minor improvements, and those minor improvements will make you a major jump. Yeah, that first statement कि we are decades behind, तो ये उसका one of the essence, एक सब पार्ट हम कह सकते हैं कि ये भी है. हाँ, बिल्कुल. कि specialization का भी. Specialization is a must. And see, like you said, developing everything around. So for example, मैं फुटबॉलर हूँ और इंडिया में तो बहुत कम है. या चलो क्रिकेटर हूँ, वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, बास्केटबॉल प्लेयर हूँ. मैं everybody cannot make the Indian team. Or even the state team. ठीक है? तो जो बाकी है वो क्या करेंगे? He's still an expert in basketball. He can be umpire, referee, match commissioner, analyst, physiotherapist, this, that, everything to do with basketball. So he will be still connected to the game. जितने भी मेरे लड़के हैं, sports psychologist हैं, जो मेरे physiotherapists हैं, they all wanted to play football. Like तू और मैं भाई, हम टीचर हैं, हम live कर रहे हैं ना ड्रीम. तो and अच्छा, why do ex-footballers then get back into coaching? Because they don't want to leave football and they still want to have the experience that. So they want to be the coach right there, and the only way they can be right there is by being a coach. एक नज़म है सर कि छोड़ दे आलस, नदी को चल अभी, कट चुका है पेड़ नाव बन चुके. डूब जा अब तू भंवर में कूद कर, नाव का क्या है वो पहले मर चुकी. तो वो जुनून वो बांध के रखता है. मतलब a kite can fly as high as it wants. और वो एक और नज़म का एक अलग है कि सन्नाटा होता है कुछ शेरों पर, ये सबसे ऊंची वाह नहीं तो फिर क्या है. तो बात सर बढ़िया यार, मेरे को पता नहीं था कि आप शेर पे ऐसी वाह मिलेगी मुझे. वाह. पर बात वही है सर, बात वही है. अगेन पता है घूम फिर के ना हम कहाँ जा रहे हैं, ये घूम फिर के हम जा रहे हैं बिलीव और होप पे. See, that is the essence of life यार, believe and hope. मेरे को वही डाउट था स्टार्टिंग से ही था कि क्योंकि आपने ना ये जो कोर वाली बात है ना, वो आपने आई थिंक पहले 3-4 मिनट में बोल दी थी
और हमने पूरा एक ऐसे राउंड ट्रिप मारी है, और इसीलिए सच है वो बात, बिकॉज राउंड ट्रिप मार के भी फिर वही आ रहा है, वही आ रहा है। एंड भाई we'll get there, I guarantee it, we'll get there, देखना we'll get there, and we will be in the world best. It's a matter of time. क्या बात है। And I believe it, भाई, I believe it. Why? Because we know we are good enough, and if anyone else can do it, we can do it. And now it's been proved. This World Cup में तो एशियन कंट्रीज ने प्रूव करके दिखा दिया हमें। हाँ बिल्कुल। तो फिर हम, चलो तुम बात छोड़ो, इनसे तो पीछे नहीं हम, और इनसे हम तो काफी जल्दी पहुंच सकते हैं वहां। सो आवर ड्रीम्स हैव बीन अगेन, सी होप, बिलीव किसने दिया? ये हमारी एशियन कंट्रीज ने बिल्कुल करके, अरे वाह देख लो। और हमने अपने बाकी सारी एशियन कंट्रीज को होप दिया क्रिकेट में। अब सारी देखो टीम्स लाइक नेपाल एंड अफगानिस्तान है सारे डूइंग सो वेल बिकॉज इंडिया ने होप दिया उनको। वो सोचते अच्छा ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और वो तो हमने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया ना कि स्पोर्ट्स के अंदर इसमें कोई पैसा वैसा कुछ है ही नहीं ज्यादा, मतलब आपको तो दम है तो आ जाओ। एग्जैक्टली। और एक ही जगह है ना, एक ही चीज है, ये एक ही चीज है जहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। एग्जैक्ट, नो शॉर्टकट, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं। और अच्छी बात है शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज अगेन दैट्स व्हाट टीचेस यू इन लाइफ। सी आई बिलीव, वो कहते हैं यार उस टीम के पास टैलेंट है, हार्ड वर्क विल बीट टैलेंट एवरी सिंगल डे। ऑल यू हैव टू डू इज वर्क हार्डर देन द टैलेंट। अगर टैलेंट है ना, कितने घंटे काम करता है? 4 घंटे, मैं 8 घंटे करूंगा साले। क्या बात है। और आई थिंक जितने लोग भी अभी हमें सुन रहे होंगे ना, आपके पास कोई ना कोई इसका एक एग्जांपल जरूर आएगा कि कोई आप याद करो जब आपने आईटी की कोचिंग ली होगी, एक क्लास का वो सबसे डम बच्चा जिसने जाके ये पूछ लिया था कि क्लोरीन का सिंबल Cl क्यों है, या कुछ इस टाइप की चीज पूछ दी होगी कि यार ये तो इसको तो कुछ भी नहीं आता है ना। और फिर बाद में 2 साल बाद देखते हैं कि वो आपसे बेटर कॉलेज में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो हटा ही नहीं सवाल पूछने से। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। बिल्कुल भाई, वो हटा ही नहीं और वो वहां बैठा है। as long as you don't give up, as long as you don't see, that is the power. So लोग सोचते हैं जीतना क्या है, ओए हम फर्स्ट आ गए। ना जो पहली बारी में साला फर्स्ट आएगा, जिस दिन गिरेगा ना कभी नहीं उठेगा नहीं। बिल्कुल। विनर ऑफ लाइफ इज सिंपल, द वन हू नेवर गिव्स अप, बिकॉज यू कांट बीट हिम। विनर कौन होता है? द वन यू कांट बीट। How somebody who doesn't give up, that means you can't beat him. That means to beat him you have to kill him. The only way you can beat him. So as long as I'm not giving up, I'm winning. Simple. ये मेरे जुनून का है मौजिज़ा, मौजिज़ा माने तूफान, कि ये मेरे जुनून का है मौजिज़ा, जहां अपने सर को झुका दिया वहां मैंने काबा बना दिया। क्या बात है। हाँ, तो ये मेरा शेर, ये किसी और मेरे को राइटर याद नहीं आ रहा, पर क्या परफेक्ट ब्यूटीफुली पिरो के रखी हुई है बात। बिल्कुल। वाह। सर वो बताओ मेरे को आप, जो जिस पे हमने बात घुमा दी थी कि ये आप डील कैसे करते हो फिर ये पॉलिटिक्स से, क्योंकि आपके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करता। इसीलिए इसीलिए मैं 5 स्टेट में चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। हमारे 11 नेशनल टाइटल है, मगर मैं 5 स्टेट में कभी भी देखा भी नहीं कि स्टेट एसोसिएशन, फॉरगेट अबाउट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर भी नहीं हूं मैं। क्यों? बिकॉज समहाउ जो पॉलिटिक्स में होता है, इट इज टोटली एंटी ऑफ व्हाट स्पोर्ट्स स्टैंड्स फॉर। सर आर यू श्योर अबाउट इट? बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें यू कैन नेवर इवन थिंक ऑफ हैपनिंग, some things you have to do in politics. For example, sports में आप मेरिट के बिना लड़के को नहीं लोगे। पॉलिटिक्स में आप मेरिट नहीं देखते हो, आप बहुत कुछ और देखते हो। Okay, we can even go to the extent से कि आप मेरिट अगर देखते हो तो आप पक्का नहीं लोगे। Exactly. हाँ, आप मेरिट नहीं, आप कुछ टोटली कुछ और देखते हो। हाँ, आपको पपेट चाहिए। Exactly. So that is why वो जो मेरा ethics है ना, ethics से नहीं मैच करता मेरे। So until and unless I am into sports where I am given I don't have to fight for an election and I am told that this is your job, कि job ये है जो मैं फ्री में करूँगा, कि आपने ग्रासरूट डेवलप करनी है, तो वो मेरा फोकस है। I don't want to be president or secretary or this because मेरा फोकस उठ जाएगा। नहीं सर, आप क्या करना चाह रहे हैं वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप शिकार हो कभी इसका, पॉलिटिक्स का? मैं तो हर रोज शिकार होता हूँ। और हाउ डू यू, फॉर एग्जांपल, जब तक ये प्रफुल्ल पटेल यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट, तो मेरे केस ने सुप्रीम कोर्ट में, ही स्टेड बियॉन्ड हिज इलेक्शंस करा ही नहीं रहा था, तो मैं उसी केस में मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने
16 साल के बाद इसको हटाया पोस्ट से, जो 2 साल इलेक्शंस वो हाँ तो 16 साल के इसको हटाया इलेक्शन से। अब जब मैं लड़ रहा था ये केस 6 साल, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ AIFF एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी इन फुटबॉल, ही मेड माय लाइफ हेल। मतलब मेरे क्लब को मुझे 4 बारी बैन लगा, बैन फ्रॉम फुटबॉल, फ्रॉम एंटरिंग अ फुटबॉल स्टेडियम, फॉर nothing, because all those things were dismissed later, because every time they should do it I should take them to court, and the court used to dismiss it and saying कि क्या नॉनसेंस है ये। 60-70 लाख रुपीस के मेरे फाइन लगाए हैं। फाइन ऐसे चीज़ों के कि आपके मैच में आपके एम्बुलेंस के अंदर जो आपका स्ट्रेचर था उस पर एक बेडशीट नहीं थी, सो 2 लाख फाइन। आपका इंटरनेट मैच कमिश्नर रूम में 10 मिनट के लिए ऑफ हुआ, 2 लाख फाइन। सो बेसिकली ट्राइंग टू मेक माई लाइफ सो हेल दैट आई लीव फुटबॉल एंड गो। And instead of that, they didn't understand that it motivated me the other way. Every time they should do that, there used to be more fuel in the fire. Yeah. Because then I used to say, okay, fine, end of the day, that means I'll give up. जो बात बोल रहा था. As long as I'm not giving up, I'm winning. That means I'm creating problem for them. जितना इनको ये करना चाह रहे हैं, इसका मतलब इनको मैं तंग कर रहा हूँ. अगर मुझे इग्नोर करेंगे, इसका मतलब तंग नहीं कर रहा मैं. So they did that again and again and again and again, and I won in the end. जो 16 साल से इंडियन फुटबॉल में कोई नहीं कर सका, मैंने करा. इनफैक्ट 85 इयर्स में पहली बार हमारा एक फुटबॉलर इज द प्रेसिडेंट ऑफ AIFF. 85 इयर्स में. क्या बात है. इमेजिन, आज तक फुटबॉलर प्रेसिडेंट ही नहीं था AIFF का, पहली बार 85 इयर्स में बना. सो वो आपके पहले वाली बात याद आ रही है कि 2034 we can do it, yes, and we will do it. 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 Definitely. क्या मजा आएगा ना, ये अनहर्ड हम इसको दोबारा चलाएंगे, है ना. 2032 में जब हम क्वालिफाई कर जाएंगे ना, तब सर क्या बात है, जरूर guarantee. डन. ये अच्छा, ये मजा आएगा, ये उस समय हम करेंगे. और and both of us then will be also having this video because we'll be looking much younger then. Definitely. क्या बात है, मजा. इनफैक्ट सर मैं आपको बताऊं कि हम ना शो के एंड तक आ गए. आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट कि मैं आपकी इंट्रोडक्शन दूं या कैसे है, बिकॉज जरूरत नहीं है. डिस्क्रिप्शन में डालेंगे वहां पे आराम से. Done. Perfect. हाँ. That's the way it should be instead of wasting time here in this. बात करते ना सर, आप इतनी मुश्किल से हाथ आए हो, है ना. और आप आई थिंक बीमार भी थे अभी. I've been ill for the last 3 days यार. So I'm taking it very hard on myself because I don't like being ill. Sir, because then I can't be better than yesterday. वो मैं पीछे चल जाता हूँ 3 दिन में. तो इवन जो ये प्रोडक्शन है, हॉय विद रॉय प्रोडक्शंस और पीयूष भाई, तो हम लोग जब इस शो की भी डिस्कशन करते हैं, हमारा कभी स्क्रिप्ट इसमें नहीं होती है इस पर्टिकुलर चीज के लिए. अब हम अपने इनक्यूबेटर जो हमारा स्टूडियो है, मुझसे भी बाहर आ गए, है ना, आपके ऑफिस. So I got you out of your comfort zones. अरे सर यही कंफर्ट जोन है. दिस बॉडी इज माय कार. हाँ, ये इतना चलता है. पर मजा बहुत आया क्योंकि ये हमारे लिए भी फर्स्ट है इस टाइप की चीज. और मैंने आपको जैसे ही बताया कि आते ही एक ना वो जो मैं बोल रहा था कि जुनून की खुशबू. आप सोच के देखो यार कि आप रंग देख नहीं पा रहे हो, आप रंग सूंघ पा रहे हो. देखो कि आप डिफरेंट सेंसेस में आ रहा है. घुसते सार वही फील आई है. अंदर आके हमने थोड़ा सा आपको सोफा वो भी थोड़ा हिला दिया, यहाँ पे कर देंगे. No problem. See, why I'm proud is that हम लोकल नहीं है, हम नेशनल अकेडमी है. हमारे इस टाइम पे 24 स्टेट से लड़के हैं. So that's what I'm proud of. And अगर हमारे सारा देश हमारे को फॉलो करे, where we focus on the youth of the country. Forget about football. हमने आगे जाना है ना, तो हमारे को 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आगे कौन लेके जाएगा? हम नहीं यार, बच्चे. उन पे फोकस करना है. हम सारा क्या करते हैं, अपने पे पैसा खर्च करते हैं. कि पर्दे लगाकर रात करो, उलझा दो. मिलकर हिजर की बात करो, उलझा दो. तुम करते थे जैसा मीरा से, बस वैसा मेरे साथ करो, उलझा दो. अब देखो आपकी बात के बाद मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये सारी फील्ड समझ में आ गई है या फिर मैं और उलझ गया हूँ. ज्यादा ही कुछ समझ आ गई है. तो थोड़ा सा ये ना इल्म के मेरे को ना हमेशा से प्रॉब्लम रही है सर. नॉलेज से ना मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ये इतनी बड़ी वर्च्यू है, इट शुड मेक योर लाइफ इजी. ना इट मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. इट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड. सर आप पैराडॉक्स समझ रहे हो? सो समझो ना इस बात को कि जो बंदे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो कभी डिप्रेस नहीं होता. बिल्कुल.
क्योंकि he doesn't have to think about stuff. Yeah. The more you overthink it, so Yeah. now you have to learn. Again, sports gets you that. So now you learn how to compartmentalize and when to think. Sports is something which you can switch off from life by. अगर आप जाओ स्पोर्ट्स में खेलने कुछ भी खेल, you switch off. जो मर्जी प्रॉब्लम है लाइफ में, you can't think about it while you're playing. सोच ही नहीं सकते. तुम खेल रहे हो, you only concentrate on the sport, and that will give you. क्या बात है सर. इससे बड़ा नेचुरल, अच्छा ऊपर से ड्रग्स, इससे बड़ा नेचुरल हाई नहीं है यार. Because it's proven that the same muscle parts of the endorphins which are released in your body with drugs is released naturally with sports. Yeah. So there's no, कहते हैं runners high, एक runners high, Runners, yeah. जो रन करके वो असली बात है. So imagine if So drugs are only imitating what there is. so वो you are taking a substitute for Yeah. something which you can do and you can actually get fitter and better and in more ways than one. Life qualities as well. People लगता है कि सिर्फ फिटनेस के लिए करते हैं स्पोर्ट्स. ना बेटर बंदा बनने के लिए करते हैं. बिल्कुल. इवन जो आपसे पहले जो गेस्ट आए हैं अनहर्ड के ऊपर, फर्स्ट वन वाज कर्नल के कक्कड़. तो उनके थ्रू हमने जाना था कि मतलब थोड़ा अलग एंगल पे गए थे कि आर्म्ड फोर्सेस जब एस्टेब्लिश्ड है कि आप वायलेंस इज बैड थिंग, व्हाई डू वी नीड आर्म्ड फोर्सेस, तो उनको वैसे एंगल पे लेके गए. देन वी हैड अनदर गेस्ट डॉक्टर संदीप सिंह. वो एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं पूरी. उनसे हमने एजुकेशन के बारे में जाना. उनकी एक स्टेटमेंट आई थी उसमें कि इफ वी से एजुकेशन इज द ओनली वे टू अचीव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट मे नॉट बी करेक्ट. तो मैंने तो वो स्टेटमेंट उठा के वो तो मेरे साथ आ रखी है और आज वही स्टेटमेंट जो है अनहर्ड के ऊपर. बट वही बात ठीक बोला ना. बिल्कुल ठीक है. हाँ, एजुकेशन नहीं है क्वालिटीज देती लाइफ. हाँ. अच्छा, और एक और चीज, जैसे आर्म्ड फोर्सेस की बात की थी ना आपने. आर्म्ड फोर्सेस में आप किसी भी सोल्जर से पूछ लो, यू वांट टू फाइट, ही विल से नो. दे डोंट वांट टू फाइट. दे हैव टू एंड दे विल फॉर द कंट्री if the country wants it. See, we are all sitting here because of armed forces. आराम से. बिल्कुल. They don't want to be there. You think one of my boys wants to be in Siachen right now? In this? No. He's doing it for who? For you and me. Yeah. And if tomorrow we have peaceful neighbors like we have in Nepal side or Bhutan side, और वो भी peaceful हो जाए तो उनको भी नहीं करना पड़ेगा. वापस आ जाएंगे. So armed forces is there just not as they want to do it because they have to because simple. वो सर शेर है ना यार, इसको कंक्लूड करता है वो कि नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, तेरे आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं. करना है तो करना है, कर लेंगे और ऐसा करेंगे कि इनफैक्ट. सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी ऑन योर शो मैन. इट्स सो ग्रेट एंड ना फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन हुआ है. एंड यही बात जो मेरे को अच्छी लगी कि कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं थे, ना मुझे कोई स्क्रिप्ट थी, ना कुछ क्वेश्चंस थे. इट्स ऑल वन टू द अदर लीडिंग टू द अदर. सो इट्स वेरी वेरी गुड. और सबसे अमेजिंग बात आई थिंक हमारे जो लिसनर्स हैं अभी उनको भी ये होगा कि मुझे तो बहुत कनेक्टेड लगा ऊपर से लेकर नीचे तक. हमारा शो ना एक धागे में आया है. All the things. Yeah, एक धागे में. Education and the armed forces and this perfect. See, I live 20-15 साल पहले रात को नींद नहीं आती थी. And I had the maximum amount of power and the money in my bank account. Now I'll sleep like a baby and I don't have to think about anything. Why? Because I live my life through my morals. मुझे पहले जिद्दोजहद उसको करनी पड़ती है रात को जिसको मॉरल्स उसके सेट नहीं होते हैं. जब मेरी सारी लाइफ ही मेरे मॉरल वैल्यूज पे मुझे डिसीजंस लेने की जरूरत ही नहीं है. एवरीथिंग इज ऑलरेडी टेकन फ्रॉम मी. आई हैव टू जस्ट टॉक अबाउट जनरल थिंग्स कि क्या खाना पीना है, बिकॉज वो चीज़ें डिसाइड हुई है, सोचना ही नहीं उसके बारे में. सही है. तो एक काम करते हैं ना, जाते जाते एक नज़म हमारी तरफ से हम देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. जो हम प्रॉब्लम्स तो होती नहीं सर, मतलब कि जो सोची हुई प्रॉब्लम्स होती है ना, जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि अदर देन मनी कंस्ट्रेंट, कि आपके पास पैसा है ही नहीं, उसके अलावा कोई और कंस्ट्रेंट है नहीं जिंदगी में. क्या कहते हो भाई? वो भी कंस्ट्रेंट नहीं है ना. इट्स हाउ यू थिंक अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे को उठा के जेल में डाल दे, क्या करेगा पैसे का? तुम बिल्कुल वाह, तुम्हारा रहना पड़ेगा ना फिर. Just giving it. Doesn't matter how rich you are. और काफी बिलियनर हैं जो भी अंदर हैं, ठीक है, उनके पैसे कुछ नहीं कर रहे. मुझे यही लग रहा था, पता ये सवाल, ये भी टेढ़ा सवाल था. ये मैंने ना उनसे पूछा था जो हमारे एजुकेशन वाले आए थे ना, तो उनको ये थोड़ा सा, क्योंकि वाई, बिकॉज ये जाएगा दुनिया में. आप और मैं तो हम बाहर गेट पे कनेक्ट हो गए थे विद द वन हैंडशेक. जस्ट उनकी केयर करने के लिए ये सवाल मैं डाल देता होता हूँ, पैसे वाला. उन्होंने भी यही बोला, उनकी स्टेटमेंट थी, मनी इज नेवर अ कंस्ट्रेंट. नेवर. सी यू नेवर पे अंडरलाइन करते हैं, नेवर बिकॉज सी अगेन
Who's your only competition? You. Who can't you lie to in life? Yourself. That's it. So if I am happy with myself, I can give the same happiness in 50 rupees or in 5,000 rupees. How you look at it, man? Because happiness तो मुझे sports field में मिलती है सबसे ज़्यादा. Nothing can buy that. वो मुझसे मिलेगा कैसे, मिलेगा कहाँ? मैं यहाँ ज़मीन पे रहता हूँ और वो वहाँ. क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है सर. बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. ठीक है सर, यहाँ पे इसको हम रैप करते हैं. बहुत बहुत भाई. And I hope 2032 में हम इसको फिर रिविजिट कर रहे हुए. पक्का. बस ठीक है. थैंक यू एवरीवन. माय नेम इज रोहित गर्जा. दिस इज अहोय विद रॉय प्रेजेंट्स अनहर्ड.